مردوں پر عورتوں کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حق مہر ادا کرنا۔ اگر کوئی مرد عورت سے نکاح تو کرتا ہے لیکن دل میں حق مہر ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے تب تک بھی وہ اگر حق مہر ادا نہیں کرتا تو جب اس کی موت ہو جاتی ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملتا ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایسا آدمی جو اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ بدکار اور زانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں اور حدیث کے ٹکڑے کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے ہی ایک جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم اس جوڑے سے سکون حاصل کرو، اور وہ عورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حقوق عورتوں پر کیا ہیں اور عورتوں کے حقوق مردوں پر کیا ہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لہذا ایک مرد ایک عورت سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو جانے، اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نکاح کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت انہیں اپنے آپسی حقوق معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں ابھی چند دن ہی گزرتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے الگ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہے ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس کا ذکر کرتا چلو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے اوپر جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی جو ہے تمہارے حقوق ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں صحابہ کرام کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، بہت ساری وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ بے شک تمہارے اوپر عورتوں کے حق ہیں، تمہارے اوپر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری عورتوں پر بھی تمہارے حق ہیں۔ لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جو اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، لہذا ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتے، میرے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کے لیے وقت نکالو اور تم جو ہے اس کی طرف توجہ دو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ
कसरत से रोजे रखा करते थे, मुसलसल रोजे रखा करते थे, कसरत से तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, मुसलसल जो है क़ियामुल लैल करते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं निकाला करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और कहा कि ऐ अब्दुल्ला, मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलसल रोजे रखते हो, रोजे छोड़ते ही नहीं हो, रात भर क़ियाम करते हो, सोते ही नहीं हो। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हाँ ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलसल रोजे रखता हूँ, रात भर क़ियाम करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि ऐसा ना करो, बल्कि तुम रोजे भी रखो और रोजे छोड़ते भी रहा करो, और तुम रात भर तहज्जुद पढ़ते भी रहा करो और थोड़ी देर आराम भी करते रहा करो, इसलिए कि तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है कि तुम जो है उन्हें आराम पहुंचाओ, और तुम्हारे जिस्म का हक है तुम पर कि तुम जिस्म को आराम पहुंचाओ, और तुम्हारे घर वालों तुम्हारी बीवी का भी हक है कि तुम उसका हक पहुंचाओ। तो मेरे भाइयों, अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां आंखों के हक अदा करने का हुक्म दिया, जहां जिस्म के हक को अदा करने का हुक्म दिया, वहीं अपनी बीवी और बच्चों के हक अदा करने की भी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। मेरे भाइयों, मर्दों को चाहिए कि वो औरतों के हुकूक अदा करे, औरतों को चाहिए कि वो मर्दों के हुकूक अदा करे, क्योंकि मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक जो है उससे पूछा जाएगा। उसमें एक इमाम है, एक हाकिम है, एक जो है लीडर है, उससे पूछा जाएगा उसकी रियाया के मुतालिक कि तुमने उनके साथ कैसा सुलूक किया। इसी तरह एक मर्द से सवाल किया जाएगा उसकी औरत के मुतालिक कि तुमने उसका हक अदा किया है या नहीं किया है। एक बीवी से सवाल किया जाएगा उसके शौहर, उसके माल और उसके बच्चों के मुताल्लिक कि क्या उसके हुकूक अदा किए हैं या नहीं किए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो अपने हुकूक को अदा नहीं करते तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो शर्मिंदा होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मर्द अपनी औरत का हक अदा नहीं करता तो वो हलाक और बर्बाद हो जाता है। तो इंशाअल्लाह जुमा आपके सामने मर्दों पर औरतों की क्या हुकूक है, कि मर्द औरतों के क्या क्या हुकूक देने हैं, वो उसका तज़किरा करूंगा। इसके बाद वाले जुमा इंशाअल्लाह मर्दों के औरतों पर क्या हुकूक है, औरतें मर्दों को क्या हुकूक देने हैं, इंशाअल्लाह इसका तज़किरा आगे जुमा या किसी और मौके पर आपके सामने बयान करूंगा। मेरे भाइयों, आइए उसका जिक्र करता चलो। सबसे पहला हक औरतों का जो मर्दों पर है, मर्दों के लिए जरूरी है कि वो औरतों का हक अदा करे। वो हक क्या है? सबसे पहला हक महर है। कौन सा हक है? हक महर है। जब औरत से निकाह कर रहे होते हैं तो मर्द के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले उसका हक महर अदा करे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा वआतुन्निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी जो औरतें हैं उन औरतों को जो हक के महर है खुशी खुशी अदा करो। ये नहीं कि दिल में तकलीफ रख के तुम अदा करो, बल्कि खुशी खुशी उनका हक के महर तुम अदा करो। फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर तुम्हारी बीवी वो चाहते हुए अगर माफ कर दे या तुम्हें दे दे तो तुम खाओ पियो मजे करो, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम अपनी बीवी का हक महर अदा करके अदा करो। तो मेरे भाइयों, इस आयत से हमें ये बात मालूम हुई कि मर्दों पर औरतों का सबसे पहला हक क्या है? हक महर अदा करना। अगर कोई मर्द औरत से निकाह तो करता है लेकिन दिल में हक़ महर अदा करने की नीयत नहीं रखता, यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाती है तब तक भी वो अगर हक़ महर अदा नहीं करता तो जब उसकी मौत हो जाती है कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलता है तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़ियल्लाहु यौमल क़ियामति व हुवा ज़ानि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं ऐसा आदमी जो अपनी बीवी का हक़ महर अदा नहीं करता कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से इस हालत में मिलेगा कि वो बदकार और ज़ालिम होगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हक़ महर से एक बात ये भी याद आई, आज मुआशरे में देखा जाता है कि बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो हक़ महर अदा नहीं करते। जब उनका इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाते हैं, तब जो है उनकी लाश के सामने उनकी बीवी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उनसे ये कबूल कराया जाता है कि तुमने जो है अपना हक़ महर माफ कराया। तो वो औरत क्या है? मजबूर होकर, तमाम लोगों के सामने मजबूर होकर कहती है कि मैंने हक़ महर माफ कर दिया। ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, लेकिन आज हमारे मुआशरे में यही चल रहा है। मेरे भाइयों, जहाँ औरत का
سب سے پہلا حق مہر تھا، وہیں ان مردوں نے ان کا حق دینے کے بجائے جہیز کی شکل میں بھیک لیتے ہوئے انہی کا مال جو ہے لوٹتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور اسی جوڑے کی رقم سے یا اسی جہیز کے لیے ہوئے پیسوں سے وہ حق مہر ادا کرتے ہیں۔ کیسے ہیں یہ مسلمان؟ افسوس کی بات ہے، جبکہ عورت کا حق کیا تھا کہ اسے جو ہے حق مہر ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا حق ہے حق مہر مردوں پر جو انہیں عورتوں کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا حق ہے اس کے کھلانے، اس کے پہنانے اور اس کے گھر کا انتظام کرنا۔ کھلانے، پہنانے اور اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کا حق ہے کہ وہ عورت کو دے۔ اللہ، جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا یہ حق ہے کہ تم عرف عام کے مطابق، دستور کے مطابق انہیں کھلاؤ، دستور کے مطابق جو ہے انہیں پہناؤ۔ دستور کا مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے تمہاری اتنی طاقت کے مطابق کھلاؤ، جتنی طاقت ہے تمہاری اس طاقت کے مطابق تم انہیں پہناؤ۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ ایک مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تو کھانا کھائے تو اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم کپڑے پہنے تو اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اور اپنی بیوی کو گالی گلوچ نہ کرو، اپنی بیوی کو بری زبان سے کلام نہ کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تهجر الا في البيت، اگر تم بیوی سے ناراض ہو گئے تو اپنی بیوی کو اپنے الگ کرو بستر سے، لیکن گھر سے باہر نہ نکالو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مردوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا حق یہ کہ جب کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے، جب پہنے تو اپنی بیوی کو پہنائے، اور جب وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو کوئی بڑا احسان نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی پر کیسے جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کھلاؤ پہناؤ، لیکن اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اسے نہ مارو، خصوصاً اس کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور جب وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا اس کی وجہ سے تمہیں کوئی جو ہے ناراضگی آ جائے تو اپنی زبان سے گندی گندی گالیاں نہ دو۔ میرے بھائیوں، اس پر جو ہے تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کیسے ہیں، کیسی کیسی گالیاں جو ہے ہم اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا یا اپنے بیوی یا اپنے بچوں کا خرچ ادا نہیں کرتا تو لہذا عورت شوہر کی کمائی سے بغیر اجازت کے جو ہے کچھ ضرورت کے پیسے نکال سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بخیل ہے، میرا شوہر کنجوس ہے، نہ میرے لیے خرچے کو دیتا ہے نہ میرے بچوں کے لیے خرچے کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس کے مال سے بغیر اجازت کے لیے کچھ لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذی ما یکفیک ولدک بالمعروف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں لے سکتی ہو، لیکن اتنا ہی جتنا تیری ضرورت ہے اور تیرے بچوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کا مال ضرورت کی حد تک استعمال کرے، لیکن آج دیکھنے میں یا سننے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی پوری کمائی یا شوہر کی کمائی پر قبضہ کر کے وہ خود راج کرتی ہے اور اپنے لیے یا اپنے میکے میں لے جا کر جو ہے وہ اپنے پیسوں کو جو ہے اڑاتی ہے، ایسے سننے میں ملتا ہے، لہذا یہ بات بھی، یہ عمل بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیوی کو کھلانا، بیوی کو پہنانا، بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرنا، یاد رکھیں اس میں بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ بے شک تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس خرچ کا تمہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ تم جو بیوی کو
लुकमा, बीवी के मुंह में लुकमा डालते हो, उस लुकमे का भी अज्र व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम जो मेहनत करके कमा रहे हैं, बीवी बच्चों को खिला रहे हैं, इसका अज्र व सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देता है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह व दीनारुन अनफक़तहु फी रक़बतिन व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन व दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक दीनार जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, एक दीनार जो तुम गुलाम आज़ाद करने में लगाते हो, एक दीनार जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, एक दीनार जो गुलाम आज़ाद करने में लगाते हो, एक दीनार जो अपने बीवी बच्चों को खिलाने में लगाते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आज़मुहा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अज्र व सवाब वाला दीनार है, वो दीनार जो अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए लगाते हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना, मिस्किनों को नहीं खिलाना या गरीबों को नहीं देना या गुलाम आज़ाद करने में नहीं लगाना। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो करना ही है, लेकिन इन तमाम में सबसे ज्यादा अज्र व सवाब वाला अमल या अज्र व सवाब वाला दीनार कौन सा है? जो अपने बीवी और बच्चों को खिलाने के लिए लगाते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर अपने माँ बाप पर खर्चा करना छोड़ दे, शौहर अपने भाइयों पर खर्चा करना छोड़ दे, अपनी बहनों पर खर्च करना छोड़ दे, सिर्फ जो है अपनी बीवी और बच्चों का ही देख रहा है, सिर्फ जो है अय्याशी में पड़ा हुआ है, फजूल खर्ची कर रहा है। इसलिए कि खर्चे का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन ऐश करते हुए फजूल खर्ची से भी रोका गया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए कहा, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और जो लोग अब माल खर्च करते हैं, उस खर्च किए हुए माल को फजूल कामों में भी नहीं लगाते, फजूल भी खर्च नहीं करते और कंजूसी भी नहीं करते, ये मोमिन है। तो यहाँ अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? फजूल खर्ची से भी बचना है और बखीली से भी बचना है। तो मेरे भाइयों, इन दोनों हदीसों से हमें ये बात मालूम हुई कि जहाँ मर्द पर औरत को खिलाने, पिलाने और उसके लिए खर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं उसके रहन सहन के लिए, उसके घर के इंतजाम के लिए भी जो है जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है कि जिस घर में तुम रहते हो, उस घर में अपनी बीवी को रखो, जिस घरों में तुम रहते हो उन घरों में अपनी बीवियों को रखो, और याद रखो अपनी बीवियों को तकलीफ देने के लिए उन्हें न सताओ या अपनी बीवी को सताने के लिए उन पर जो है सख्ती ना करो। तो मालूम क्या हुआ इस आयत से? एक तो बीवी के लिए रहने का इंतजाम करना मर्द की जिम्मेदारी है, और जब वो अपने घर में रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसा चाहे सलूक करेगा, बल्कि उसके साथ नरमी का सलूक करेगा। अब आइए आगे बताता चलो। सबसे पहला हक़ महर अदा करना है, दूसरा हक़ खिलाने पिलाने रहने का इंतजाम करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। तीसरा हक़ क्या है? तीसरा हक़ है बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, बीवी के साथ नरमी का मुआमला करना, उम्दा बर्ताव करना, हंसी खुशी के साथ उसके साथ जो है जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए कहा, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारो, हंसी खुशी से जो है जिंदगी गुजारो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए कहा, फ़इन करीतुमूहुन्ना, इसलिए कि अगर तुम्हारी बीवी में कोई चीज नापसंदीदा है, अगर तुम्हारी बीवी में कोई नापसंदीदा चीज है जो तुम्हें नापसंद लगती है, वयजअलुल्लाहु खैरन कसीरा, तो अल्लाह तुम्हारे लिए उस बीवी में बहुत भलाई रखा हुआ है। कैसे? एक हदीस से हम समझ सकते हैं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफ़रक मुमिनुन मुमिनतुन इन करिहा मिनहा खुलुकन रज़िया मिनहा आखर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक मोमिन मर्द अपनी बीवी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, दुश्मनी ना रखे। अगर उस औरत के अंदर कोई चीज उसे नापसंद लगती है तो दूसरी चीज जो है उसकी अच्छी लगती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक औरत अनपढ़ है, यानी तालीम हासिल की हुई नहीं है, तो शौहर को हो सकता है ये नागवार महसूस होता हो कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर दूसरी खूबी क्या होती है कि वो ज्यादा बच्चे देने वाली होती है, वो बीवी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली होती है, वो बीवी घर को अच्छी तरह चलाने वाली होती है। तो लिहाजा मर्द सिर्फ ये ना देखे कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि उसके जो दूसरे अच्छे काम है उन अच्छे कामों की वजह से उसके साथ
अच्छा सलूक करे। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करते हुए कहा, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम निसाइहिम, के कामिल ईमान वाला वो है, मोमिनों में कामिल ईमान वाला वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है। आगे कहते हैं खियारुकुम निसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है, तुम में सबसे अफजल और अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहता है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि जो आदमी अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं रहता, जो आदमी अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं रहता, वो बाहर वालों के साथ क्या अच्छा रह सकता है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहने वाला सबसे जो है अफजल आदमी है। इसी तरह मेरे भाइयों, मर्दों को चाहिए कि वो जो औरतों पर जुल्म करते हैं या औरतों को सताते हैं, इस मामले में उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। अब देखें कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हुए कहते हैं, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, बस तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो इन औरतों के मामले में। औरतें कमजोर हैं, वो तुम्हारी मातहती में दी गई है, लिहाजा वो तुम्हारी खिदमत करती है, तुम्हें सुकून देती है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है फत्तकुल्लाह फिन्निसा, कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए औरतों के मामले में। क्यों डरना चाहिए? फइन्नकुम अखज़तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह, कि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी में लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी में तुमने जो है अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को लिया है। वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलिमे के जरिए तुम्हें जो है उसे हलाल किया है। तो मालूम क्या हुआ, औरतों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह आने वाले जुमा आपके सामने बयान करूँगा। औरतों के जो हुकूक बयान किए गए हैं, पहला हक़ महर है, लिहाजा मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो हक़ महर मरने से पहले अदा करें। और दूसरी चीज़ क्या है? नानो नफ़्क़ा, खिलाने पिलाने रहने का इंतज़ाम ये मर्द के लिए दिया गया है। इसी तरह हुस्न सुलूक यानी अच्छी तरह जिंदगी गुजारने का हक मर्द को दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी का सलूक करे, और जुल्म से और इसी तरह उसे तकलीफ देने से और इसी तरह उस पर सख्ती करने से एक मर्द को बचना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मर्दों को औरतों के हुकूक अदा करने और औरतों को तमाम मर्दों के हुकूक अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। इलाही आलमीन, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें शिफा याबी कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।